they have made piles of dominoes और उसके बड़े मजेदार पैटर्न बनाते हैं और what they do is कि they just while making the dominoes pattern they only look for one property और वो ये है कि अगर k गिरेगा तो k plus 1 that is the only property they take care और उसके बाद what they do is कि वो पहला डोमिनो गिराते हैं बस ठीक है and then you can see how induction is working. Okay, so here is one example. आगे तक है काफी लोगों ने there are thousands and thousands of these amazing dominoes that they have produced, and all of them work on just one principle. You know, this is the power of induction principle. It actually it works, and it's so intuitive to understand.
कि the only responsibility you have is कि तुम base case को पे, which means the first domino you need to prove कि वो गिरेगा, और वो किस तरह तुम prove करते हो कि you actually make it fall by your force, okay, and then you by in making those dominoes you actually prove this thing कि pk से pk plus 1 पे domino जरूर गिरेगा, ठीक है, अगर गिरता k गिरता है तो k plus 1 गिरेगा, ठीक है, alright, any questions so far? Alright. Let me go to one more. Okay. So let me show you a few examples where which are actually faulty proofs. Okay, something is wrong with the proof, and you have to figure out okay, where is it is wrong. Okay, so here is one example. So what I will prove is that all the horses in the world are black. Okay? That is something I will do. Okay? So here's a statement I want to prove. All the horses, and you have to figure out कि कहाँ पर मसला है. ठीक है? So open all the neurons. Okay? So all the horses in the universe are black. Okay? So far so good? Okay? So there is the base case. Okay, not black, actually are of same color. Okay, it could be any color, but I am saying they all have the same color. No racism. Huh? No racism. Sorry? No racism. No racism. Whatever. Okay? So all have the same color. Okay? So let's take a base case. Base case means n is equal to 1. Okay? I have one horse. उसका कलर उसी के बराबर होगा. No problem. Okay? So far so good? Alright. So n is equal to 1, this is true. Of course, it's extremely true. True. Okay. So here is my inductive step. Okay? What does my inductive step says? No? So let's say अगर I can actually say anything. PK से PK plus 1 पे जाना है. ये क्या होगा? Yes, sir. इसका मतलब क्या होता है? What is the meaning of PK here? If I have, let's assume कि I have K horses और उन सब के same color है, and I have to prove for K plus 1. Okay, I can also actually state, let me call it K minus 1 to K. This is also the same. Okay? Alright. So what is my K minus 1? Assumption. What is my Pk minus 1? It's an assumption that all the horses of up to K minus 1 up to K horses are of same color. ठीक है? तो मतलब ठीक है, I assume कि मेरे सारे के सारे horses up to K
out of same colors. ठीक है? ठीक है? Okay? Assume कि मेरे पास जो K कोई भी मैं K horses दे दूँ, कोई भी मैं K horses दे दूँ, उनका same color. That is something I assume. Any अगर मेरे पास पूरी दुनिया में जितने भी मेरे horses हैं, उनसे मैं अगर K assume करूँ, उन सबका K same color. This is something I have assumed. ये बात समझ आ गई? ठीक है? समझ में तो नहीं? Okay. So let me line them up like this. यहाँ पर horse number 1 खड़ा हुआ है, यहाँ पर horse number 2 खड़ा हुआ है, up to horse अगर K से K plus 1 पे जा रहे हैं तो हम यहाँ पे K plus 1. Let me call this K. ठीक है? So far so good? Yes, sir. What is my inductive hypothesis? What is my inductive hypothesis? This is my inductive step. This is my word inductive hypothesis. Okay. All K horses have same color. This is my assumption, right? Okay. All K horses have same color. ठीक है? Sign. K horses का मतलब मैं कोई भी K horses ले लूँ, उनका सेम कलर. ठीक है? यही मतलब है ना इसका, है ना? ये कितने horses हैं? हाँ? Up to this. K horses. ठीक है? ये कितने horses हैं? ये भी K horses हैं, है ना? ऐसे है ना? इन horses का कलर सेम है, इन horses का भी कलर सेम है ना? यही है ना मतलब? अगर इनका कलर सेम है और इनका कलर सेम है और ये इनमें कॉमन रीजन है तो सारा कलर सेम है. आप बताओ. Okay, so let me write 3 statements. Okay. What is my inductive hypothesis? My K horses are of same color. Okay? Second? So this is called my region 1. This is called my region 2. Okay? Region 1 by inductive hypothesis. By inductive hypothesis. By inductive hypothesis has same color. Has all same color. ठीक है? Alright? So my segment 1. And by segment 2, I also know region 2 by inductive hypothesis have same color. Okay? Third step, they have a common region. Okay? And a common region must be of same color. ठीक है? The common region, let me call this. यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है? Let me call it C1. C1 has same color by intuition. Okay? Trivially true, right? Right? That should imply, because they have common region, that should imply all horses has same color. सर एक कॉमन रीजन की बात समझ लीजिए कि आप ये समझ में आ गया रीजन 1? जी जी ये भी समझ में आ गया रीजन 2? नहीं, रीजन 2 समझ में आया. वो तो नहीं आया. तो ये इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या कहता है? इंडक्टिव हाइपोथेसिस कहता है कोई भी n हॉर्सेस ले लो, कोई भी k हॉर्सेस ले लो, ठीक है, तो उनका सेम कलर हो. ये आपको पता है, ये आपका इंडक्टिव हाइपोथेसिस है. ठीक है? ये चीज आपको लीप ऑफ फेथ है. मतलब इंडक्शन में ही होता है कि यू टेक ए लीप ऑफ फेथ कि भाई मैं ये चीज तो अज्यूम करता हूँ कि ठीक है. क्या मैं एक स्टेप आगे जा सकता हूँ? यही मैंने प्रूव करना होगा कि अगर मेरे पास अगर n+1 हॉर्सेस होंगे तो क्या होगा, है ना? और मैंने क्या प्रूव किया? मैंने कहा कि तुम क्या करो, तुम पहले n हॉर्सेस ले लो और आखिरी n हॉर्सेस, है ना? By inductive hypothesis, you know that they have same color. यस सर.
रिलेटिव अबाउट में यही यूज किया था कि कोई भी n साइज का तुम अगर हॉर्सेस लोगे तो उसका सेम करो। मेक सेंस? ठीक है? और ये चीज भी लगती है ना? कि उनमें कॉमन रीजन है ऑफ कोर्स, और दोनों में सेम होगा ऑफ कोर्स, है ना? तो ये चीज अप्लाई होनी चाहिए। लेकिन कॉमन रीजन में कोई एज्यूम ही गलत करे, एक अगर कोई एज्यूम ही गलत करे लेकिन उसकी जो k+1 है वो उसकी अजम्पशन के मुताबिक वो ट्रू हो रही हो तो वो क्या ठीक हो जाएगी? एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने भी बताया मेरे के, वही हमने यहाँ पर फिगर आउट कर दी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि इंडक्टिव हाइपोथेसिस में जब आप कहते हैं ना कि ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है? जब आप ये बात करते हैं तो आपकी हर स्टेटमेंट जो है वो इंप्लाई करनी चाहिए, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज मैंने लिखी, ये चीज मैंने लिखी, ये चीज मैंने लिखी, क्या ये सही एप्लीकेशन है? For n is all n is greater than or equal to 1 के लिए मुझे जेनेरिक प्रूव करना है कि ये मेरी जितनी भी मैंने स्टेटमेंट्स लिखी है वो n is greater than or equal to 1 के लिए ट्रू होनी चाहिए, है ना? ये जितनी मैंने स्टेटमेंट्स लिखी है, ये क्या n is greater than or equal to 1 जो कि हमारा k है यहाँ पर, इसके लिए ट्रू है। My all these statements must be true for on this assumption. उससे आगे मैं रिजल्ट कंक्लूड करूँ, वो मुझे मेक श्योर करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विद दिस इंडक्टिव हाइपोथेसिस जो मैंने लिया है, मुझे बाकी सारी चीजों को जो मैंने स्टेटमेंट अज्यूम की है वो मुझे ठीक अज्यूम करनी चाहिए। ये चीज मैंने अज्यूम की है, ये तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस डायरेक्टली अप्लाई होती है, ये भी डायरेक्टली अप्लाई होती है, ये स्टेटमेंट ठीक है। क्या बोला ये स्टेटमेंट कौन सी? कि इन दोनों के दरमियान में एक कॉमन रीजन है ना? ये स्टेटमेंट ठीक है? सर कॉमन रीजन तो है, लेकिन जो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला हॉर्स है वो तो कॉमन में नहीं आएगा ना? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉर ऑल n is greater than or equal to 1 के लिए ठीक है? नहीं है, क्यों? वन है, हाँ? अगर वन है तो कैसे होगा? 1 के लिए नहीं, आगे चलो 2 के लिए ठीक होगा, क्यों? एक नीचे की नहीं, यस, आपके पास हॉर्स 1 यहाँ पर है, हॉर्स 2 यहाँ पर है, ठीक है? मैं पहले n-1 लेता हूँ या पहले n लेता हूँ तो मेरा एक हॉर्स आता है और यहाँ पर मेरा 2 हॉर्स है, यहाँ पर ही मेरा एक हॉर्स आता है, दूसरे हॉर्स, इनमें कोई कॉमन रीजन है नहीं, तो दैट्स व्हाई ये मैंने पिक्चर बनाई थी, दैट वाज अ फॉल्टी पिक्चर। सर कॉमन रीजन कॉमन रीजन इस तरह यहाँ पर था, यहाँ पर h2 से लेकर hk तक सारे कॉमन थे, राइट? टू के लिए नहीं हो रही है, इसके लिए कॉमन नहीं, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये n is greater than or equal to 1 के लिए ट्रू नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट मैंने लिखी, you understand? And that's the wrong implication. अगर ये स्टेटमेंट ठीक होती तो फिर ये implication ठीक था, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं रॉन्ग, so you have to be careful with those inductive hypotheses, जो चीजें तुम assume कर रहे हो वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है? Alright? Sorry? मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने कहा है कि मेरा इनके दरमियान में कॉमन रीजन होगा, ये कॉमन रीजन होना लाजमी नहीं है, क्योंकि n is equal to 2 के लिए ये फॉल्स करता है, n is equal to 2 के लिए मेरा पहले n-1 कितने, मेरा n is equal to 2 है, राइट? n is equal to 2 का मतलब क्या है? मेरे 2 हॉर्स हैं, n-1 और ये मेरा n+1 है, ये 2 है, तो n मेरे हॉर्सेस पहले होंगे वो कितने होंगे? 1 होगा, उसका अपने आप से कलर ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये बात भी ठीक है कि जो लास्ट वाला n+1 n होंगे वो भी मेरे पास ठीक है, लेकिन क्या ये दरमियान में कॉमन रीजन है? नहीं, तो वो बेस केस में गलत रहता है। ये जो मैंने जेनेरिक स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट ही मेरी k के लिए ट्रू नहीं है, हर k के लिए ट्रू नहीं है, बस मैं ठीक है? ओके,
All right. Let me do an example. अच्छा एक छोटी सी बात तो इशारे को मुझे बताएं। You remember हमने जो इसके लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात की थी, जो हमारा इंडक्टिव ऑर्गन जो हम एक्चुअली यहाँ प्रूव करते हैं, you should also check one thing। जब वो चेक करते हैं यहाँ पर तुम्हें बात समझ में आ जाती है, वो एरर निकल आता है। लेकिन जो तुमने इंडक्टिव हाइपोथेसिस से इंडक्टिव स्टेप लिया, वो तुम्हें एक स्टेप आगे चलाकर चेक करना चाहिए कि वो वाकई ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कहा था? यहाँ पर मैंने कहा था कि मैंने एक वर्टेक्स और इंट्रोड्यूस किया, तो जिन दो के साथ एडजस्टमेंट बनाए, उनके अलावा बाकी सारों से डायगोनल बनाए। ये बात समझ आई? और जो पहले ये एज थी, वो क्या बन जाएगी? डायगोनल। So let's try to verify. Let's say for example, हमने यहाँ पे ये 4 का बेस केस बनाया था। 4 के इसमें हमारे कितने डायगोनल थे? 2। ये डायगोनल था और ये डायगोनल, ठीक है? तो let me introduce a new vertex. किसी भी इन दो के दरमियान में होगा exactly same जो मैंने इंडक्टिव हाइपोथेसिस बनाया, वो मैं यहाँ पे चेक नहीं कर सकता। तो इन दोनों के दरमियान में तो क्या है? एज है, ठीक है? जो ये जो पहले एज थी वो क्या बन गई? ठीक है, जो कि मेरा ये। और जो बाकी इसके अलावा जो वर्टिसेस हैं, हम सबको समझ में आ रहा है। These will be my number, ठीक है? And I can actually count, ठीक है? तो मेरे और यही मेरा डायगोनल, आप और डायगोनल नहीं, ठीक है? So my inductive hypothesis actually works from base case on. यहाँ पर जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी थी, वो बेस केस ऑनवर्ड वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। You can actually verify, right? अच्छा, एक बार बताओ क्या पावर सेट पता कितना क्या होता है? सारे सबसेट्स, राइट? तो अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ कि एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होता है? A set which only contains power. No, sorry, ऐसे होगा। इसका क्या होगा? ठीक है, ये होगा। A B का क्या होगा? एक सेट है S, ठीक है? उसका जो पावर सेट है उसे PFS कहते हैं। अच्छा, but you want to prove is कि पावर सेट का जो साइज होता है, इसे साइज कहते हैं, जो n कहते हैं, ठीक है? सेट का साइज, अगर इस S का S ये है और S का साइज है n, ठीक है? What you want to prove is दानिश कितना होता है पावर सेट का साइज? 2, ठीक है? That is something you want to do. ठीक है? And you can verify from the basis कि जब हमारे पास empty set था तो it should be 2 to the power 0, कितना होगा? 1. It is 1. What is, if it is 1, it should be 2. It is 2. ये बात समझे? And what about 2? 2 का क्या कितना चाहिए? 4. And you can verify it as 4. A और फिर क्या आता है? B. Sorry? B. ये जो मैंने जानबूझ के आपके पहले कुछ स्टेप्स कर रहा हूँ, ठीक है? ये एक्चुअली मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन इट इज ऑलवेज गुड कि आप कुछ स्टेप्स कर लें। दिस इज समथिंग आई वांट टू प्रूव कि मेरा पावर सेट का जो साइज होता है वो 2 to the power n, ठीक है? ओके, so let me add one more and then I will do it again. It will be how much? Empty set A, B, C, A, B, C, A, ओके? इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ये एक्चुअली एक हिंट है, ठीक है? उसकी अब मैं करता हूँ क्या? C, AC, BC,
Okay? Alright? Okay. Now what you want to prove is कि जो power set of a set जिसके n elements हों उसका जो power set का size अब कितना होगा 2 to the power n. ठीक हो गया? That is something you want to prove. Okay? So how you will prove it? 2 power. Again by inductive hypothesis. पहले आपने base case prove किया. Base case आपने मुझे एक दिन prove किया आपने multiple prove किया. ठीक है? So it's fine. अब आपने inductive hypothesis inductive step. What is your inductive step? It contains two things. One is the inductive hypothesis you take, and the second thing is आपने inductive step का तरीका, यानी PK से PK plus 1 का step complete करना. ठीक है? आसान. Inductive hypothesis मेरा क्या है? एक आसान. Inductive hypothesis मेरा क्या है? If I say PK is true, what does this mean? Or PN is true, whatever I say. If I say PK is true, क्या मतलब है? This is something I want to prove. Right? This is something I want to prove. This is my P of N. ठीक है? This is my statement. मैंने prove कर दी. ठीक है? इसको मैं कुछ और भी कर सकता हूँ. ये power set का वेक्टर है. Some statement. T. Q. This is something I want. What is my Q of K? Q of K is I assume to be true. Okay? तो क्या statement है मेरी मैंने prove करनी? कि एक set है जिसका size n है. एक set है जिसका size n है. उसका जो power set है उसका size कितना होगा? 2 to the power. ये मैंने prove करना. अब अगर मैं इसको जेनेरिक प्रूफ करना चाहता हूँ व्हाट इज माय Q of K? K plus 1 is equal to 2 power. हाँ? K plus 1 will be equal to 2 power K plus 1. इसका मतलब क्या है? Q of K का मतलब क्या है? Q of K is 2 then Q K plus 1 is 2. ये हमें प्रूव करना ना. मेरे का Q of K की स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सीधे बताओ. मतलब ये कि 2 power n में जितने सेट्स आते हैं उनमें एक सेट ये है. हाँ? अगर सेट के n मेंबर्स हैं तो उसके लिसन यार प्लीज. अगर सेट के n मेंबर्स हैं तो अगर सेट के K मेंबर्स हैं k मेंबर्स हैं तो उसके मतलब पावर सबसेट्स 2 की पावर k होंगे. एक्सेप्ट. ठीक है? So this is my you should write this. Okay? Explicitly. इसका मतलब क्या है? कि if S the size of S is K then the power set of S का size is 2 to the power. Okay? And now what we want is कि हमने QK plus 1 प्रूव करना. QK plus 1 क्या प्रूव करना? क्या मतलब इसका? कि हमने इस S में एक एलिमेंट और ऐड कर. ये बात समझ? So what we want to prove is कि now my S dash is S union a new element. Let me call it KN plus 1 or AK plus 1. ठीक हो गया? हमने एक नया एलिमेंट के अंदर ऐड किया. This is something. और हमें अब प्रूव करना है कि जो what is the thing I have to prove? To prove is कि the power set of S dash is 2 to the power. ये बात समझे? Okay? Again, mathematically भी आप शायद से प्रूव कर सकते हैं, but I want to do it pictorially. It makes more sense. यहाँ पर देखिए क्या होता है? Empty set का power set ये. जब आप एक नया एलिमेंट ऐड करते हैं तो क्या होता है? उसका भी empty set आता है. उसमें एक तो वो empty set आता है और जो नया एलिमेंट है वो उस empty set में ऐड. ये बात समझ? ठीक है? What about the new element now added? This B. So actually I can write this. This is actually the previous set union a new element. This is I can write as the previous set union B. ये नया